So I would like everyone to get ready to welcome our chief guest. So let us all put our hands together for our chief guest, Mr. and Mrs. Singhania. He is a very well-known personality in the field of finance. So first of all, I would like to thank everybody who is present here because their presence have made this already special evening a very special one. And thank you to our chief guests for providing us with their precious time. Now, before starting anything new, we always remember the name of remover of obstacles, which is Ganapati Bappa. So I would like to invite on stage Ms. Shriya Singh and Ms. Preeti Jha to perform on Ganpati Bappa's song in the dedication of our chief guest. Let's put our hands together for them. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. A very graceful performance was performed by them. So let us all clap together again. Now it's time to award our topper. Any guesses who she is? Yes, right. Miss Priyanka Agarwal. So I would like to invite her on stage and I would like our respected Manas sir to be on the stage to provide her with the award she deserves.
Just a second, Priyanka. Since you are the topper of your batch and of the coaching, of course, I would like to ask some questions. Hope you don't mind answer them. So it's a dream for so many students to even score above 90, but you have scored above 90 in all your subjects. So what is the secret of your study routine? Uh, Hello everyone, I'm glad that I'm standing here today receiving this award. Uh, all this is possible due to great determination with consistent effort which I used to put every day. I used to set some goals which I used to accomplish every day without counting the number of hours I spent. One more question. So, were you always a bright student, or it was not as consistent as it is now? Actually, I was a bright student. So Priyanka Agarwal is a great motivation as a role model for all the upcoming batches who are going to give the board's examination next year. Now it's time for a dance performance again, which will be done by class 10 batch for their seniors, dedicated to their seniors, because their seniors have performed so well in their examination. So I would like to invite on stage Miss Avilasha, Miss Bharti Shah and Miss Anshu Kumari to perform on the song which they have practiced. Give them a huge round of applause. सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। आसमां का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है। सहमा दिल तब तक करे दिन है या ये रात है। हाय तू मेहरबा क्यों हो गया बा खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। Now it's time to award our second topper, Bhavna Agarwal. So can I please her on stage? To award her, I would like to invite Manasa's mother to do the honors.
Just a second, Bhavna. How are you feeling right now? I can't explain. I can't explain. So what is the message you want to convey to the junior batch of yours? मेरे जैसे ही पढ़ो क्या That's a really good advice to give. मेरे जैसा ही पढ़ो. You can take your seat. Now it's time to invite our third topper of the center. Any guesses who she is? So let's invite her, Twinkle Shadu Khan, on the stage. For awarding her, I would like to invite Mr. Manak Patpari, our respected teacher, to do the honors. So Twinkle, what kept you going for studying so hard to become the topper? It's consistency and full dedication. Now it's time to invite on stage the toppers of class 12. First, I would like to invite Mr. Yashraj Sonalia. And I would request Mr. Manak Patwari again to come on stage to do the honors. Now it's time to invite Miss Kankana Hauladar. She is the topper of class 12 CBSC. So let's put our hands together. Sorry, ICSE. Acha. Now let's welcome Manak sir's mother to do the honors.
So Kankana Holadar, as you have scored 91 in business studies, so what always keeps you motivating to study? Good evening, everyone. There is nothing such like to be motivated. It's always consideration, balance in the personal and the studies. So it all manages up and mugged up into such an incredible number. And I hope the next generation and the next students also does the same. Thank you so much. Thank you. Now I would like to invite on stage Miss Soumita Tanti from WB batch, the topper of the coaching again. And I would like to invite on stage Manak sir's father to do the honors. So, Soumita, what is the message you want to convey to the next batch who is going to give the both next year? तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ऑफ कोर्स आई एम अ बंगाली. सो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे या फिर तुमसे तो नहीं होगा, बट एज मानक सर से टू मी कि तुम कर सकती हो, हमेशा कर पाओगी. तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे वो, और सभी को कोशिश करनी पड़ेगी इसके वजह से. Now, we will present the dance performance, but before that, I would like to talk about the most important person of our coaching center, which is Manak sir. On behalf of all students, I would like to appreciate his teaching methods, which made us love our studying. So, let's us all stand up and join our hands for him. गुड इवनिंग एवरीवन. रिजल्ट इस बार का, इसके आने वाले सालों का रिजल्ट तो हर साल फ्लक्चुएट होगा. इस बार का रिजल्ट अच्छा आया है, अगले साल का उससे अच्छा आएगा, उसके अगले साल और भी अच्छा आएगा. तो रिजल्ट सिर्फ मेरे वजह से नहीं, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, कोचिंग के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझसे ज्यादा मेहनत कोचिंग के बच्चे करते हैं. आज कोचिंग का नंबर, आज कोचिंग यहाँ पे, आज अपना कोचिंग है, अपना स्कूल है, आज कोचिंग के नंबर्स और बढ़ेंगे. तो इसके पीछे एक टीचर का तो एक हाथ होता ही है, लेकिन बच्चे भी सपोर्टिव होते हैं. जैसे आप देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम होगा तो बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे कि नहीं घर में पढ़ाई करेंगे, कोचिंग क्या करेंगे, 2 महीना पहले से आना बंद कर देते हैं. लेकिन अपने कोचिंग का यही एक खास बात है, अगर क्लास नहीं रखे, देखो पीछे से हंसी सब आ रहा है, अपने एग्जाम के एक दिन पहले आना कि नहीं भैया आप क्लास रखो. अरे कल बोर्ड एग्जाम है, आज क्लास क्यों नहीं है? अरे तो घर में ना पढ़ना, सिलेबस तो खत्म हो गया है. लेकिन बच्चे का अपने कोचिंग में रहता है कि नहीं आप क्लास रखो, क्लास करना है. अपने बोर्ड्स के पहले, बोर्ड्स के बीच में, बोर्ड्स के बाद बच्चे और टीचर का कनेक्शन तो जुड़ा ही रहना चाहिए. आज हम लोग भी क्लास किए, हम लोग के भी टीचर्स थे. आज दादाजी सबसे बड़े टीचर है. आज
कोचिंग का सबसे पहला ये फंक्शन है और सबसे पहले ही फंक्शन में दादाजी को हम लोग ने इन्वाइट किया। इसके पीछे का कारण ही ये था, आज जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो जैसे मम्मी हमेशा से दादाजी से कुछ भी पूछना कि क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। दादाजी कहता जो कर रहा है करने दो, सही करेगा, किया तो क्या, नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो दादाजी का गाइडेंस हमेशा से रहा है। आज भी कोचिंग को रन करने के लिए कोचिंग का जो भी मैनेजमेंट है, आज आर्या इसको भी प्राइज मिलने वाले मेरी ही स्टूडेंट है। इस बार इसने भी बोर्ड एग्जाम दिया, इसका भी 12th अच्छे परसेंटेज से क्लियर हुआ है, तो इसके लिए भी क्लैपिंग बनता है पहले। कोचिंग को पूरा संभालते हुए, बोर्ड एग्जाम है उससे पहले आना, कोचिंग को संभालना, फिर बोर्ड एग्जाम देना, उसमें इतना अच्छा स्कोर करना। इंग्लिश में इसका 80 आया है। अरे 90, 95, 100, 70, 50, 60 सबका आएगा, लेकिन सबको बैलेंस करके चलना यही सबसे मेन है। आज कोचिंग में जितना भी आप सब देख रहे हैं, तो इसमें मेरे से ज्यादा यहाँ के मेंबर शिशिर है, राज है, राजदीप है, यहाँ के स्टूडेंट्स सब आके मेहनत कर रहे हैं। तो याद रखना, ये जो मार्क्स है ये अल्टीमेट नहीं है। ये क्लास 10 के स्टूडेंट हो गए, 12 के हो गए, 97% है, 95% है, 82% है। ये मार्क्स हमेशा नहीं रहेगा एक जैसा। अभी तो 10 है, अभी तो 12 है, अभी CA है, नीट है, JEE है, इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ाई है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो ये प्रोग्राम, ये सेलिब्रेशन बस यही तुम लोग को बताने के लिए है कि तुम लोग के अंदर इतना कैपेबिलिटी और एबिलिटी है कि तुम लोग कभी भी कुछ भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। कभी भी मार्क्स किसी को जज नहीं कर रहा है कि नहीं। जैसे बहुत बच्चे कि भैया हम लोग का नंबर कम आएगा तो हम लोग को इन्वाइट कीजिएगा क्या, भैया ज्यादा नंबर आएगा तो हम लोग को, अरे कम नंबर आए बेसी नंबर आए, नंबर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। आज हम लोग 11th-12th में जितना नंबर स्कोर किए हैं, तो क्या CA में भी उतना ही स्कोर किए? नहीं। क्या नीट JEE में उतना स्कोर होता है? बिल्कुल नहीं। आज 10th में 12th में हम लोग को लगता है कि नहीं 90% आएगा, 95% आएगा तो बहुत अच्छा बात है, वैसा बात नहीं है। 60-70% वाले बच्चे भी देखा जाता है कि 90% से पहले CA क्लियर कर लिए। 60-70% वाले बच्चे ही देखा जा रहा है कि नहीं मेडिकल का एग्जाम सबसे पहले क्लियर किए, 90% वाले बच्चे पीछे रह गए। तो ये हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग कैसे अपने आप को मैनेज करें। आज पढ़ाई जो चीज है, तो पढ़ाई ऐसा नहीं ना यार कि टेंशन है, टेंशन लेके पढ़ाई करना है, जबरदस्ती पढ़ाई करना, अपने लिए करना है। आज तुम लोग को अवार्ड्स मिल रहा है, तुम लोग को प्राइज मिल रहा है, तो इसमें तुम लोग को अच्छा लग रहा है। अभी तुम लोग घर जाओगे, तुम लोग के पेरेंट्स वहाँ वेट कर रहे हैं, तुम लोग जाओगे ना ऐसे मेडल, ट्रॉफीज, गिफ्ट सब लेके, तो वो लोग सब वहाँ खुश है पहले से। वो लोग अभी 10 दिन को कॉल लगा दिए हैं कि नहीं मेरे बच्चे को आज कोचिंग में प्राइज मिल रहा है। तो फिर तो जो भी बच्चे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के लिए, एक सोसाइटी के लिए, कि सब मिल के साथ में डेवलप कर रहे हैं। तो बस इसीलिए तो सबने, जैसे आर्या ने कहा अभी कि मेरा हार्डवर्क, मेरा डेडिकेशन जो भी है, लेकिन मेरे साथ साथ इस बैच के बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया है। आज एक टीचर को भी आगे बढ़ने के लिए बच्चों का सपोर्ट चाहिए। आज मैं पास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना यार कि पहली बार में 97% आया था। जब से सबसे पहला बैच था तो उन लोग का तो 50% ही आया, 70% ही आया। इस बार के बैच का इतना अच्छा नंबर आया है, आने वाले बैच का नंबर और अच्छा आएगा, और नंबर कम भी आ सकता है। तो टीचर का हार्डवर्क हमेशा वैसे ही रहता है। बच्चे को भी पढ़ाई के प्रति, टीचर के प्रति ईमानदार, लॉयल रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? क्या बोलते हो सब? यस। चलो, थैंक यू। As today, many dreams of many people have come true, I would like to invite on stage Ms. Bharti Shah, Avilasha Jha to perform a dance performance on the song Sapne Re. चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया।
टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। आजा डायरी में छुपा दूं, आजा तुझको चोटी में बांधूं, कहीं किसी को न दिख जाए। सपने रे सपने रे सपने मेरे हाथ तेरा कस के पकड़ लूं, साथ साथ तेरे मैं चल दूं, डर तुझे ना किसी से लग जाए। सपने रे सपने रे सपने मेरे रातों को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। ला 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 ला। Now I would like to invite on stage Miss Mahi Bamalwa, the science topper from class 10th batch. And I would like to invite Mrs. Singhania to do the honors. तो आज मानक सर सेट तुम बहुत तंग किए उनको तो हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? मतलब टॉप भी कर लिया, सर को तंग भी कर लिया, कैसे? बनू So as you have topped the science batch and science is very difficult to study, what are your methods you use to study science? Especially in biology, she got 96 in biology. Clapping. कंसेप्चुअल स्टडीज पे ध्यान देती थी ज़्यादा, उस पर रटती नहीं थी मैं नहीं रटती थी। कंसेप्चुअल स्टडीज पे ध्यान देना और पढ़ाई ज़्यादा नहीं करती थी, जिसमें 2 घंटा, लेकिन जब पढ़ती थी कंसेप्चुअल स्टडीज पे ध्यान देना और जो भी पढ़ती थी लिखती थी और अगले दिन आके मैं बोलती थी टेस्ट ले लो। थैंक यू।
I would like to invite on stage Miss Ishani Singh and Miss Preeti Jha as they have scored 90 above in the 10th ICSC batch. And I would like to invite on stage Mr. Manak Patwari, their teacher, to do the honors. हेलो 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 क्लास 10 आईसीएससी के कॉमर्स के टॉपर ही ये लोग। कमर्शियल स्टडीज में 98, 96, 94 मार्क्स तो ऐसे ये लोग का आया जैसे कोई मजाक है। और सबसे ज्यादा मस्ती कोचिंग में हम लोग की है शायद। हम लोग को होली मनाना है, दिवाली मनाना है, सब हम लोग साथ में मनाएंगे। एग्जाम से पहले तुझे बताओ कैसे मैनेज हुआ सब कुछ। और डांट वाट तो वैसे पता तो होगा नहीं हमसे। अभी अपकमिंग बैचेस के लिए बताओ, ये लोग के लिए क्या सजेशन है? कैसे क्या पढ़ाई करना, मस्ती भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तो कैसे? सबको लगता है कि नहीं बस गेट लॉक करो, पढ़ाई करो, नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सही है कि ऐसे भी नंबर आते हैं? मस्ती भी करो लेकिन पढ़ो भी। और मानक सर? इनका बात पे ज़्यादा ध्यान मत देना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा मार्क्स लाने के लिए एक टीचर मानक भैया जैसा। हाँ। As Manak sir said, it is not always important to score above 80 or 90%. It is very important to participate and pass the examinations with good grades. So I would like to invite the students who have passed their examinations with so much dedication and hard work in good grades. Okay? So I would like to invite on stage Miss Anvesha Chaturvedi. And Miss Ritika Pandit, Miss Meenakshi Verma, and Mr. Karan Agarwal. And how can we forget about Mayank Soni? Priyanka, please come on stage.
Oh, wait. You're not allowed to go. Speech, please, speech. Have some balls. So there's a misconception कि अगर पढ़ना होता है तो सिर्फ पढ़ना ही होता है, लेकिन तुम लोगों ने तो काफी मस्ती भी की है बाकी 10th के बैच के साथ में, स्पेशली अन्वेषा वगैरह ने. So what is your thoughts about study? हम लोग ने मस्ती की लेकिन पढ़ाई भी की. और मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी पहले, जब मैं भैया के यहाँ पे 1 साल पहले ही ज्वाइन की थी, तो मेरे को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता था. लेकिन फिर इस बार बोर्ड्स था तो डर भी था बहुत ज़्यादा, लेकिन भैया पढ़ाते थे. भैया के पास यही है कि पढ़ाई भी कराते और मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, तो भैया ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैंने पढ़ा और इसीलिए सब. थैंक यू. Meenakshi, my question for you is, how is the MPC Center has helped you to gain such good grades? देखो मेरा तो एक ही है कि वर्क हार्ड करो जब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिलता, और अपना बेस्ट दो और एंजॉय भी करो पूरा लाइफ, और मानक सर का तो सपोर्ट है ही. थैंक यू. So, Mayank, you have scored 91 in information technology. So, how are you interested in technology and what are the methods you used? I personally find the subject very easy, and it's just to learn the subject conceptually, not just mug up it. So you can get marks in it very easily. Give them a huge round of applause. There are many more students who are not present right now, but their names has to be mentioned. Miss Isha Agarwal, who has gained 82% marks. Miss Tushi and Nirjala, they are not present among us due to some reasons, some personal issues, but they are missed. So give them a huge round of applause. मान्या, अनिकेत आओ, स्टेज में आओ. प्रियंका, तुमको दो सर, मिडिल दो. ये लोग अपने एमपीसी के जेम्स है. मान्या, क्या बोल रहे हैं बताओ. क्या पढ़ नहीं, क्या बताओ बोलो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. अगर हम दूसरे बच्चे को बोलेंगे ना कि नहीं उसका नंबर अच्छा आया है, इसका नंबर तुमसे ज्यादा अच्छा है, तो भैया आप ऐसे क्यों बोलते हैं? आप सर मत बनिए, भैया है ना, अब भैया जैसा बोलिए. तो मान्या, अनिकेत, प्रियंका, ये लोग ने भी काफी अच्छा स्कोर किया है. एक स्टूडेंट अपने बेस को, भले किसी का बेस कमजोर रहे, किसी का बचपन में पढ़ाई वैसा नहीं हुआ है, 40%, 30%, 60%, लेकिन अनिकेत, मान्या, प्रियंका, ये लोग का नंबर फिर भी बहुत अच्छा है. ये लोग के लगभग सभी सब्जेक्ट्स में 70, 80 वैसा स्कोर हुआ है. क्लैप. Now it's time to invite on stage Mr. Sajjan Singhania, our honorable chief guest, to provide us with some knowledge by giving a speech.
Hello. My dear boys and girls, do you want prosperous life? Do you want prosperous life? Now adding more one thing, do you want charming prosperous life? Now adding one more thing, do you want charming, prosperous and peaceful life? Then you have to follow 2-3 things. Just I am giving you minimum tips. Number one, education is a part of life. It glorifies, it gives you knowledge, everything. But education is not all the things. First, if you want all these 3 lives, charming, prosperous, peaceful life, then you have to need first, you have to develop your physical strength. Without that, you cannot go in that stage. Number 2, you must be a disciplined person. Without discipline, you cannot achieve all these 3 things. So I just advise and suggest you follow health, rigorous health system and then discipline. Just these are the few tips for you, younger generation. And without personality development, this cannot be achieved. So physical strength is needed for personality development. Thank you very much. Now we are about to end this event, so I would like to request Mr. Shishir Kumar and Rajdeep Bhaiya to distribute the food packets to the pass out students. Class. शायरी बनता है ना? बनता है याद नहीं आ रहा लेकिन बनता है ना शायरी। अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान तौलना बाकी है।